So keep failing and keep growing. And when you fail, मतलब ऐसे नहीं कि fail हो गए, तो analyze करो कि फिर मैं fail क्यों हुआ, and फिर वो तुम्हारा mistake मत करो. आपको एक बार पता लग गया ना कि this went wrong, then you figure out that like how can I fix this, and then you do the same thing again, and then it will work. Hey everyone, so today we have one of the youngest entrepreneur with us, and let's welcome Sahil Sachdeva. Sahil, first of all, thank you so much for joining us for this show today, and I'm very thankful that आपने इतने busy schedule में से अपना time निकाला. I know मैंने आपका schedule देखा है कितना pack रहता है, तो thank you so much Sahil. I appreciate you, Maria. Like you came all the way from Delhi to Chandigarh. Like it means a lot, and thank you so much for inviting me. Yeah, Let's I was get so rolling excited. with the podcast. Sure. तो साहिल, आप सबसे पहले ये बताओ कि जैसे कि हमारी जो ऑडियंस है दे डोंट नो अबाउट लेवल अप पीआर, और उनको ये नहीं पता कि पीआर एजेंसी होती क्या है. तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक्चुअल में आपका काम होता क्या है, लाइक सिंपलर वे में, जिससे ऑडियंस को समझ में आए कि व्हाट इज पीआर एजेंसी. Yeah, so a PR agency is like a public relations agency, and जो हमारा काम होता है basically, हम जो होते हैं एक client का जो भी message है, like their brand story, like how they got started into the industry, what struggles did they face, okay, what is unique about their brand. तो हम वो message जो उनका वो audience को बताते हैं, and वो हम कैसे बताते हैं, it could be through various strategies, like social media हो गया, और like उसको प्रेस में फीचर कर दिया हमने, on Forbes, Entrepreneur, और like other magazines, like ठीक है, उसको हम टीवी पर प्लेस करते हैं उनको, we get them into podcast placements. So our goal is to get their messaging heard, right? And that's going to be helping them build their reputation. So they are going to be seen as a brand in the industry, alright? They're not going to be seen just like any other person. तो बेसिकली आप दूसरों के ब्रांड्स को रिकॉग्निशन में हेल्प करते हो, right? So it's like brands को to build their recognition and build their credibility, इसमें आप हेल्प करते हो, so getting them more brand awareness. हाँ, so that उनकी credibility बढ़े and उनकी like popularity बढ़े, so that उनके पास business ज़्यादा आए. Exactly. Yeah. Okay. So आपकी कंपनी based कहाँ पर है? अभी हम मोहाली में based हैं, and my first office used to be in Ambala, and very recently, like 4 months back, we launched our 5,000 square foot multi-story office building in Mohali. Other than that, हमारा एक US में भी we have a virtual base, but most of our operational activities and headquarters it's in Mohali. Okay, तो ये मोहाली वाला ये वाला ऑफिस है जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं. Exactly. Yeah. तो मैंने ऑफिस टूर किया है, like you have an amazing office. तो आप ये बताओ यहाँ पे कौन-कौन से ऑपरेशंस आपके यहाँ पर होते हैं? इस ऑफिस पे, इस लोकेशन पे. Right, so we have a physical team as well, and then we also have other people who are working remotely with us. They have been working with us ever since we launched this company, so we still have those people working with us. And here we have content writer, we also have a PR strategist working with us, we have human resource, client success manager, a few people in business development who reach out to people and who manage the queries that we get from people who want to work with us. ओके, तो साहिल, आपने ये स्टार्ट कब किया, लाइक आपके माइंड में ये आइडिया आया कब? ये आइडिया आई थिंक ये शुरू से ही था आइडिया, मतलब एवर सिंस आई वाज अ किड, तो मुझे ये तो क्लियर था कि मुझे खुद ही कुछ करना है, लाइक आई वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ माय ओन. आई वाज क्लियर कि मुझे जॉब तो नहीं करनी है, तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग थिंग्स. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैंने सबसे पहले एक फर्स्ट स्टार्टअप लॉन्च किया था मेरा. So that used to be a rental platform, and उसका नाम था Takens. So on Takens का मतलब है कि like things which are taken, ठीक है? तो आपके घर में जैसे कोई बुक पड़ी होगी या फिर कोई ज्वेलरी होगी, है ना? कोई चीजें जो आप यूज नहीं करते होंगे आपके घर में, राइट? Yeah, definitely. तो बहुत सारी चीजें हम वो like it's waste, like it's not producing us anything, and it's like a waste of resources. तो हम क्यों ना उसको reuse करें? तो हमने एक वो प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जिसपे like users like yourself, like people who can put the things that they have at their own rent, ठीक है? Like you could put your jewelry or book, anything that you have, and then other people like who want to be renting those things, they could come to our platform and rent those things. So you will be getting the rent, and they will be getting things for cheaper prices, and we as a platform are charging a small fee. तो आपने इसको ग्रो कहाँ तक किया? ये आपने क्यों छोड़ा, या आप अभी भी कर रहे हो, या कहाँ तक ग्रो किया आपने इसको? This startup, we were working on this for over a year, and we built a significant team. We had the website launched, we were having a few people who were putting the products on rent. But then I think like this wasn't successful, because the reason being, when you come to tech platforms like startups like these, like platforms, आपको इसमें बहुत सारा पैसा बर्न करना पड़ता है.
because there are already other players in the market, and you know we also launched, although we had a USP. But the thing is, when you are building a tech platform, okay, like you need to burn a lot of money upfront in the marketing side of things. तो वो पैसा उस टाइम मेरे पास नहीं था, and I was also pitching to investors, and of course like at that point that was my first startup and maybe I wasn't able to secure funding. So I left that startup after 1 year and I moved on to another thing. तो आपको जैसे आपने बोला कि आपको फंडिंग नहीं मिली, तो व्हाट वर द चैलेंजेस जो आपने फेस किए ड्यूरिंग योर फेस्ट टाइम, और लाइक फंडिंग ना मिलने के आपको क्या लगता है आपके पास कि आपको क्यों फंडिंग नहीं मिली, क्या रीजंस हैं उसके कि क्यों नहीं मिल पाई? I think there could be a lot of reasons because like we were pretty new at that time. Like I was like 21 years old. Although the idea was great, I guess, but I think I wasn't from a tech background, so maybe like that could be an issue. Or like the startup was not like post revenue, right? So it wasn't making money at that time. So like you have to burn a lot of money. So I think like multiple reasons हो सकते हैं. ओके, एंड आपने ये बिजनेस स्टार्ट कितने कैपिटल से किया था, कितने अमाउंट से स्टार्ट किया था? I think we invested maybe like 30,000 to 50,000, not much, because जो हमारी mostly team थी, like those were like the friends that I had in college, you know, other like interns who were working with us from the college. So that was like it was mostly like the people, and they were working with us for, you know, like the experience as well, and you know they believed in my vision. So like I think we just spent a few money on maybe the website and like some sort of marketing. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, आपने ये आपका पहला स्टार्टअप था या फिर This was the first startup, and this I launched in the last year of college. तो आपने इसके बाद कोई स्टार्टअप किया या फिर इसके बाद डायरेक्टली लेवल अप पीआर, या फिर आप हमें पूरी जर्नी बताइए कि आपके कौन कौन से स्टार्टअप्स रहे हैं और उनमें क्या प्रोग्रेस रही है, और आपने लेवल अप पीआर ही क्यों चूज किया बाद में आकर? So Takens was my first startup that I started. ठीक है, उसके बाद like since this wasn't successful, like you know I moved on, like I had to do something. ठीक है, so then I started on to exploring more things about myself. Okay, कि मुझे और क्या करना पसंद है. ठीक है, and then I first did acting also. I acted in a few music videos. ठीक है, and then I found I calling in the music also. So I started learning music and I found it as my passion. ठीक है, I really loved music. Then I started taking it very seriously and I started learning from my mentors. Okay? And once I was a little good, I also started performing in cafes, in weddings, in colleges and schools for as little as like even 2,000 rupees, like sometimes 5,000. So I started making a little bit. That was the first income that I made from my own self. So that was it. And so I think music I did for 2 years, you know, like the learning, and then started performing. उसके बाद फिर कोविड आ गया था 2020 में. So like the craft which was just going up, and you know I was on my way to become a rock star. तो वो सब zero हो गया उस time, you know, like the shows got cancelled and everything was back to zero. तो उस time भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मतलब I kept going, you know, like when most of the people were free, मैंने उस time भी figure out करने की कोशिश की कि मैं क्या कर सकता हूँ इस time में. तो उस टाइम मैंने एक कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया और मैं उस टाइम विशेस देता था, लाइक यू नो इफ देयर वाज लाइक अ बर्थडे विश और इफ इट वाज लाइक अ मदर्स डे, तो मैं वो स्पेशल लाइक आई यूज्ड टू रिकॉर्ड कस्टम सिटिंग एट माय होम, यू नो, तो वो मैं विशेस रिकॉर्ड करता था एंड यूज्ड टू गेट लाइक 250 पर विश. तो मैंने वो भी किया उस टाइम लाइक ड्यूरिंग द कोविड पीरियड. बट देन आई फाउंड आउट कि लाइक कोविड इज गोना बी रनिंग फॉर सम टाइम, तो आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट मोर थिंग्स, मैं और क्या कर सकता हूँ. तो मैंने देखा कि मैं म्यूजिक की जो हाइप मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ, यू नो आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई ब्रांड, माई सोशल मीडिया, क्यों ना मैं उसको दूसरे लोगों के लिए भी करूँ. सो मैंने उस टाइम स्विच किया था मार्केटिंग पीआर में. तो आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आप 250 रुपीज में विशेस रिकॉर्ड करते थे, तो आप अपनी खुद की वॉइस में रिकॉर्ड करते थे? यस. सो वो मेरी वॉइस होती थी, लाइक आई यूज्ड टू सिंग विद द गिटार. यू नो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आती थी कि लेट्स से यू नो लाइक मारिया requested for her mom's like it's Mother's Day, okay? So Maria wants to wish her mom, and this is the song that you want me to sing for your mom, and like some special lines that you want me to say. So I would sing that song, I would say the message, and at the last I would say Happy Mother's Day. So those things. बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को. तो मैंने ऑनेस्टली आपकी वीडियोस देखी हैं, म्यूजिक वीडियोस एंड सिंगिंग वीडियोस, एंड जब आई वाज रिसर्चिंग
ठीक है पॉडकास्ट से पहले, तो आई वाज थिंकिंग कि मेरे को ये क्वेश्चन जरूर पूछना है कि इन्होंने सिंगिंग क्यों छोड़ी, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, दोज आर वेरी गुड, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए था, पर जैसा कि आपने बोला कि कोविड आ गया तो ठीक है, मतलब लेवल अप पीआर ही सही था। या मे बी लाइक दिस टाइम टू हैपन, तो लाइक उस टाइम कुछ तो करना था। लाइक आई एम अ पर्सन जो वेला नहीं बैठ सकता, कुछ तो करना है, मतलब लाइक यू नो आई हैव सो रेस्टलेस एनर्जी, आई कांट सिट लाइक दैट, आई एम सो डिसिप्लिन्ड, यू नो आई वांट टू टेक मैसिव एक्शन टू बिल्ड एन एम्पायर। तो उस टाइम फिर मैंने देखा कि क्या कर सकते हैं, तो मैंने देखा कि अदर म्यूजिशियंस यू नो लाइक दे नीड हेल्प विद मार्केटिंग, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड हेल्पिंग आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज, म्यूजिशियंस टू ग्रो देयर ब्रांड। तो फिर मैंने उस टाइम स्विच किया था इन कोविड आल्सो, यू नो लाइक आई स्टार्टेड मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ मनी थ्रू मार्केटिंग। लाइक मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि लोग क्या सोचते हैं जिनको बिजनेस करना होता है कि हम कोई एक ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस चूज करें जिसमें हम बहुत सारे पैसे कमा लें और पहली बार में सक्सेसफुल हो जाए, राइट है ना, ऐसा और वही आइडिया ढूंढते रहते हैं कि हम ऐसा क्या ढूंढें एक तो हमें बहुत सारे पैसे मिले और हम फेल ना हो, फेलियर से डरते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो और हम बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून बन जाए, है ना। बट जितने भी मैंने रियल एंटरप्रेन्योर्स से बात करी है, हमेशा यही डिस्कवर करने को मिला है कि अभी आप फेमस हो लेवल अप पीआर से, है ना, लेकिन लोगों को आपकी बैक स्टोरी नहीं पता कि आपने पास्ट में क्या क्या किया है और कौन कौन सी फेलियर के बाद आपको लेवल अप पीआर में सक्सेस मिली। एग्जैक्टली। तो आई थिंक दिस इज लाइक जो भी ऑडियंस हमारी सुन रही है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि क्या करते हैं ना हम लोग कि एक ही चीज सोचने लग जाते हैं, एक ही ऐसा प्रोजेक्ट, एक ही ऐसा बिजनेस या एक ही ऐसी निश कि बस मुझे एक ऐसी चीज मिल जाए, लाइक सॉर्ट ऑफ मैजिक बैंड, कि हम जो है कुछ बन जाए, उसी में सक्सेस हासिल कर ले बहुत सारी। तो ऐसा नहीं होता यार, मतलब बहुत सारी फेलियर से गुजरना पड़ता है और तब जाके कहीं सक्सेस मिलती है। एग्जैक्टली, लाइक एवरी डे इज अ स्ट्रगल यार, मतलब लाइक रोज इन एंटरप्रेन्योरशिप यू हैव डिफरेंट चैलेंजेस, you have challenges to hire people, you have a challenge with the client, ठीक है, तो every day is like you get this time to like you know fail every single day, and मैं तो कहूँगा कि जितना fail हो सकते हो, like you know like failure is going to teach you a lot of lessons which success is not going to, definitely, ठीक है, so keep failing and keep growing, and when you fail मतलब ऐसे नहीं कि fail हो गए, तो analyze करो कि फिर मैं fail क्यों हुआ, you know, and फिर वो दोबारा mistake मत करो, आपको एक बार पता लग गया ना कि this went wrong, then you figure out that you know like how can I fix this, and then you do the same thing again and then it will work. हाँ, I mean यही प्रॉब्लम है कि लोग ना फेल होने से डरते हैं। तो जब मैं अपने फ्रेंड्स को जैसे आप बोलती हूँ ना कि यार फेल हो यार, फिर तो वो कहते हैं यार ये क्या बात है यार, फेल हो मतलब फेल क्यों हो, हमें तो सक्सेस चाहिए यार, कोई फेल क्यों होगा। लेकिन यार जब हम मतलब जब किसी चीज़ को ट्राई ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसमें अच्छे हैं भी या नहीं, एंड वो हमारे लिए सही है भी या नहीं, या उसमें हमारा इंटरेस्ट है भी या नहीं। सो फेलिंग आई थिंक सक्सेस से ज़्यादा और जीतने से ज़्यादा फेल होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो फेलियर आपको सिखा सकती है ना, वो आपको सक्सेस बिल्कुल नहीं सिखा सकती, बिकॉज यू नो सक्सेस लाइक अर्ली सक्सेस बिल्ड्स ईगो, राइट। लेकिन जब आप फेल हुए होते हो तो आपको पता होता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो आपको आगे जाके नहीं करनी। इसमें और एक क्या चीज़ है कि मतलब चलो फेल तो होना ही है, बट आप फेलियर को थोड़ा बहुत अवॉइड भी कर सकते हो, ये नहीं कि आपको लाइक यू कीप फेलिंग, ठीक है, तो उसमें आप कैसे कर सकते हो कि लाइक स्टॉप लाइक यू नो टेकिंग एडवाइस फ्रॉम पीपल लाइक यू नो हु हैव नो आइडिया व्हाट इट इज, ठीक है, और लाइक यू कैन लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है इन योर बिजनेस, ठीक है, यू रीच आउट टू पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग दैट थिंग, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम एंड देन यू कैन अवॉइड अ लिटिल बिट लाइक द ऑब्स्टिकल्स दैट यू गोना गेट, ठीक है। And when you are taking advice from people, like I think वो बहुत जरूरी है कि like also make sure that you're providing value to the people. जो एडवाइस वाली चीज़ आपने बोली ना कि एडवाइस लेनी, सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि ऐसे लोगों से अपने आसपास एडवाइस लेते हैं जो खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं, राइट, है ना, तो उनसे तो उनको एडवाइस भी गलत ही मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना कि एडवाइस ऐसे इंसान से लेनी है जो आपने बोला जो ऑलरेडी वो चीज़ अचीव कर चुका है, है ना, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है उसके बाद मतलब 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। मेरे को ओवर थिंकिंग की हैबिट थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, जब से मैंने फास्ट एक्शन स्टार्ट किया ना, मतलब सोचा ही बंद कर दिया, जो सोचा वो कर लिया इमीडिएटली, ठीक है,
उससे बहुत चीज़ें फास्ट होने लगी और अच्छी होने लगी, मतलब पहले Right. होती ही नहीं थी। और दूसरी चीज़ बहुत ही फास्ट एक्शन, मतलब रैपिड एक्शन। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कोई फॉर एग्जांपल बिजनेस आइडिया सोचते हैं और बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं, 4 लोगों से और पूछेंगे यार ये सही है, इसका प्रॉफिट ये, एट द एंड ऐसा होता है कि उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे निकल आते हैं कि फिर आप वो नहीं करते हो। राइट, यू गेट स्टक इन, तुम फिर एक्शन ही नहीं ले पाते, तुम इतना सारा उससे पहले ही एनालाइज कर लेते हो। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ है जो लाइफ चेंजिंग हो सकती है, ये 2 पॉइंट्स। एंड आप बताओ आपके लिए लाइफ चेंजिंग क्या रहा, मतलब आपने ऐसा क्या किया कि आपने सक्सेस हासिल करी, वो भी इतनी यंग एज पे? आई थिंक लाइफ चेंजिंग मेरे लिए, आई थिंक इट आर द वैल्यूज दैट आई हैव हैड इन माय सेल्फ, यू नो, द एथिक्स। तो लाइफ चेंजिंग, इफ यू वांट टू हैव अ लाइफ चेंजिंग रिजल्ट, यू हैव टू डू लाइफ चेंजिंग वर्क, ठीक है। तो एक वो कंसिस्टेंसी होना, एक वो डिसिप्लिन होना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। लाइक यू कांट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, यू नो, आपने 2-3 महीने कुछ किया, 6 महीने किया, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि यू नो लाइक यू आर बिकमिंग एन ओवरनाइट थिंग, तो दैट डजंट हैपन। तो वैल्यूज अपने आप में इम्बाइब करना बहुत जरूरी है, यू नो, हैविंग दैट हैबिट ऑफ लाइक मैसिव एक्शन कंसिस्टेंटली, एंड यू इट शुड आल्सो बी इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप गलत डायरेक्शन में, यू नो, मेहनत कर रहे हो, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स।